YouTube, and in this video I am going to solve the Titanic machine learning challenge from Kaggle using the new library that is added just on 15 April 2020, which is a very low code machine learning library. इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस या नंबर ऑफ रिग्रेशंस एल्गोरिथम जस्ट लाइक XGBoost, KNN, and to cat boost, gradient descent, stochastic descent, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, सबकी जो एक्यूरेसी है वो हम लोग कुछ इस टाइप में देखिए ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 50 नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स एक बार में उसका पूरा चार्ट, एक्यूरेसी, एओसी, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर और उसका कापा स्कोर एक बार में हम लोग को टेबल फॉर्म में पूरा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो चाहे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस जौन सी एक्यूरेसी जिसके जो एल्गोरिथम हम लोग यूज करना चाहे, फिर वो उसका मॉडल क्रिएट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉल दिस PyCart library, just go to the official website and then go to the install package, and you can install the library by using pip install pycaret. Or if you have conda, you can use to install conda, create your environment, and then you can pip install pycaret. And for Google Colab, to start the PyCaret, you have to use this command. Otherwise, it may cause some issues. And for Mac users, here is the command. Then while using Titanic dataset, firstly I am importing NumPy and Pandas, and then I have downloaded the dataset from the Kaggle from here in my system, and then importing the train and test dataset using the Pandas data frame read CSV, and then training, looking towards the 5 rows of the train dataset, and these are here, and train info, what all type कि पैसेंजर आईडी का जो कॉलम है उसमें कौन सा डेटा टाइप है वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड देन I have also imported the PyCaret classification from the PyCaret library, then doing the setup part. You can also see the steps how to perform the classification or other supervised unsupervised learning from here. Here are the setup of the environment and other codes are mentioned. I have also referred from here and some Medium articles. For setup of the model, firstly we have to give the train data as an input and the target variable. These are to the main, and the numeric institution if we want to give, otherwise it is set to the mean. Categorical features that we want to use, and ignore features such as name and ticket and cabin have no, इनका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैबिन का जो डेटा है वो पूरा नहीं है, इसमें नल वैल्यूज ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। नेम का भी कोई सर्वाइव है कि कोई मतलब सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेम से और हमारा टिकट नंबर से। एंड आफ्टर रनिंग दिस सेल, आई हैव टू रन
and it starts processing. While I started second. Meanwhile, it is processing. I will discuss some other topics. Here in this PyCaret, you can do various tasks on a simple. Here we see that they are missing values, true, get numeric features, categorical features, and all other feature descriptions are given. And here comparing models. Models are comparing. And it's very fast. It depends upon your GPU or the system you are using. And it is the simplest Titanic dataset. They starting Titanic did a Kaggle challenge from where the Kaggling starts. So it's very easy and और पहले से ये सब कैटेगरल और सब में चेंज हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सब कुछ इसमें जो भी डेटा पाइकैरेट का यूज़ करने से पहले हमें फीचर इंजीनियरिंग, डेटा क्लीनिंग का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पाइकैरेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो कैट क्लासिफायर है उसका यूज़ कर सबसे अच्छे आया है। और यहाँ पे मैं लाइट GBM का यूज़ करने जा रहा हूँ बिकॉज इट्स फास्ट और मतलब इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा और इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी सही आई है, 80 के अप्रॉक्स आई है। कैट बूस्ट में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको रन कराएंगे तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद अगर जब हम ट्यून कराते हैं मॉडल, तो फिर हमारा मॉडल ट्यून हो जाएगा। जो भी हमारे हाइपर पैरामीटर्स है उनको ट्यून कर देगा, कि जो भी बेस्ट हाइपर पैरामीटर है उसको ये यूज़ करेगा। और इसको हम वेरियस टाइप से प्लॉट करके भी देख सकते हैं। जस्ट लाइक ये एस्टिमेटर है, ये लर्निंग ग्राफ आएगा कि हमारा कैसा लर्निंग ग्राफ है। ये हमारा ट्रेनिंग स्कोर है और ये वैलिडेशन स्कोर है। ऐसे ही हमारा एक्यूरेसी के ऊपर ये कि प्लॉट जो है एक्यूरेसी के बेसिस पे ROC कर्व हमारा ये है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव। और ये हमारे फीचर्स हैं कि किन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस है और फीचर्स की और वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस है। और सबकी एज की सबसे ज़्यादा है, फेयर की सबसे कम है, P क्लास 1 की सबसे कम है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो यहाँ पे हमारे हमारे जो ये अपने आप ही कैटेगरिकल फीचर्स में चेंज कर देता है जो भी हमारे होते हैं। जैसे P क्लास में 3 क्लासेस है तो उसको आपको आप ही लेबल इंकोडिंग करके उसको P1 P2 P3 में अपने अकॉर्डिंग इसने खुद ही चेंज कर दिया। जैसे P1 अपने मेंशन है, P2 P3 है यहाँ पे, और अपने आप इसने सब कुछ कर रखा है। इवेल्युएट करेंगे मॉडल तो हमारा इवेल्युएट हो जाएगा, इंटरप्ट करेंगे मॉडल तो कितना ये फीचर की वैल्यू रखता है वो सारा इसमें आ जाता है। और फिर प्रिडिक्शंस हम लोग अपना टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शंस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हमें आखिरी में लेवल और उसका स्कोर जो है, अगर 0.5 से ऊपर है तो ये हमें 1 लेवल दे रहा है और 0.5 से नीचे है तो 0 लेवल दे रहा है। और ये हमारा प्रिडिक्शंस है, इसे हम अपनी CSV फाइल में स्टोर कर सकते हैं।